Good morning, ma'am. Good morning. Chalo, by the time others are joining, let's do a quick revision of what you have already done. ठीक है? So thermo में जितना किया हुआ है for the time being, let's do a quick revision for that part. Okay? Yes, ma'am. Fine. So चलो वो करते हैं start. So what is it about? Like हम लोगों ने क्या क्या start कर दिया था? We started with Ma'am, types of systems. Yes, we started with first thing system क्या है, surrounding क्या है, जो study कर रहे हो वो system हो गया और उसके पास की जो चीजें जो उनसे effect होंगी वो क्या हो गई, surrounding हो गई. Okay, and they together make your universe. Fine. तो ये चीज तुम लोगों ने कर ली थी. Fine. उसके बाद में next thing तुमने जो next पढ़ी थी वो क्या था? State functions. We went with like extensive and intensive properties. So extensive properties क्या होती हैं? Ma'am, that depends on mass. Yes, the properties which are going to be depends on mass. और intensive क्या होती हैं? And which are independent of mass and its Yes. behavior. और intensive को करने के लिए मतलब जैसे कुछ तो तुम आराम से कर लोगे, जैसे refractive index हो गया, melting point हो गया, boiling point हो गया, but थोड़ी specific properties को पढ़ने के लिए मैंने 2 points बताए थे. Extensive upon extensive will give you Intensive. Yes, so just like density, pressure, they are which type of properties? Intensive properties. Intensive. और अगर किसी में specific लग जाए तो वो किस type की property हो जाती है? Specific और molar में भी Intensive, intensive हो yes. जाती है. Intrinsic. और जितनी हमने नई properties पढ़ी थी, इसमें mass fix कर दिया जाता है. enthalpy, Gibbs free सब energy, extensive. वो किस में आएंगी? इसमें आएंगी, but अगर उसमें molar लग गया, molar enthalpy, molar entropy, तो फिर वो किस में चली जाएंगी? Intrinsic. Intensive. Then you have state function. State functions क्या होते हैं जो ये define करें कि हमारा कौन सा state होगा, मतलब solid, liquid या gas होगा. And you have path function. तो मैंने तुम्हें easy तरीका ये बताया था, सिर्फ path function याद कर लो. कौन से होते हैं path functions? Work and energy. Work, heat, energy, ये सब किस category में जाएंगे? Path function में जाएंगे and बाकी सब कुछ state function में जाएगा. ठीक है, इतना चीज clear हुआ. अब इतना क्लियर कर लिया, देन वी स्टडीड अबाउट वर्क. फाइन. तो हम लोग वर्क कैसे कैलकुलेट करते हैं? 2 तरीके होते हैं वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए. क्या तरीका होता है? एक तरीका होता है मैथमेटिकल. Minus V. मैथमेटिकल मींस व्हाट? Minus P delta V. Yes, Minus P delta mathematically V. you can say it will be minus P delta V वाला फॉर्मूला लगाना है. And what is it? Work done by the system is Negative. done by the Negative. system will be negative. And by the system में क्या होता है? Contraction या expansion? Expansion. That means in this case there is an expansion, or you can say work done will be negative. ठीक है, और वो फॉर्मूले में भी दिखता है, रिफ्लेक्ट होता है, हमें स्पेशली याद नहीं करना है. तो फॉर्मूले में जो नेगेटिव सिंबल है वो इसी की वजह से. एंड वर्क डन ऑन द सिस्टम contraction. Contraction positive. काम करेगा तो मतलब उसका तो लॉस होगा, बट अपना गेन हो जाएगा. इट विल कॉज कॉन्ट्रैक्शन, एंड कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है मैथमेटिकली देखें तो वर्क डन इज गोइंग टू बी Positive. यस, इट विल बी पॉजिटिव. ठीक है, एंड देन ग्राफिकली भी हम लोग वर्क डन निकालते हैं. तो कैसे निकालते हैं? Area under the PV graph. Yes, Area area under under the curve. the PV curve. Area under PV curve. That gives you work done. Fine.
This is one method to find. This is one. If it is supposing a closed figure, or you can say अगर supposing हमारा जो question है उसमें वो आ रहा है, I mean to say एक cyclic process है. For a cyclic process, how do you find total work done? For a Area of cyclic, enclosed figure. Area of closed figure. yes, that Area is of work done is equal to area of enclosed figure. Generally हमारा work done किस units में आता है? इसमें units अगर हम देखें तो Joule. हमारे- इसको सॉल्व करते टाइम हमारे पास जनरली वर्क Liter Liter atmosphere. atom, liter atom, liter atom. चीज में कन्वर्ट करना पड़ सकता है अगर हमारी बाकी चीजें उसमें दें तो वर्क डन इज इक्वल टू एरिया ऑफ इनक्लोज्ड फिगर. ठीक है. सो वर्क इज वन फॉर्म ऑफ एनर्जी, और यू कैन से वर्क इज वन फॉर्म ऑफ थर्मल थिंग व्हिच वी हैव ऑलरेडी स्टडीड. नाउ लेट अस मूव टू द अनदर फॉर्म ऑफ थर्मल प्रॉपर्टीज, जो मतलब और भी किस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं इसको एनर्जी को. तो एक एनर्जी का वर्क फॉर्म हो गया हमारा वर्क, जो तुमने पूरा स्टडी कर लिया. देन लेट अस मूव टू द अदर फॉर्म्स ऑफ वर्क. सो अदर फॉर्म्स ऑफ वर्क में तुम्हारे पास क्या आता है? हीट. हीट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. Yes, ma'am. हीट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, है कि नहीं? ठीक है. तो हीट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. तो अब इसमें भी हम लोग कैसे बोलेंगे कब पॉजिटिव? इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? वी यूज अ सिंबल Q टू रिप्रेजेंट हीट. ठीक है. Delta Q. यस. हीट चेंज हम लोग जो करेंगे, क्योंकि पहले तुम्हारी बॉडी के अंदर कितनी हीट है वो अपने को नहीं पता, तो हमें सिर्फ ये पता चलेगा चेंज इन हीट पता चलेगा. ओके. सो वेट, व्हाट इज हीट इज डिफाइंड एज व्हाट? कितनी एनर्जी फ्लो हुई. Defined as you can say that as the energy flow into or out of system. और heat change मतलब flow हुआ या फिर हमने गेन किया, वो हम लोग कैसे पता चलता है हमें? How do we get to know that? Sine of delta Q. Plus minus साइन से. बिकॉज अरे वो साइन छोड़ दो, मैथ्स छोड़ दो, नॉर्मल पर्सन कैसे बताएगा कि हीट ट्रांसफर हुई है? कैसे बताते हो हीट ट्रांसफर हुई है? Change in temperature. Change in temperature. डिफरेंस इन व्हाट? टेम्परेचर. ओके. किसके अंदर? या तो टेम्परेचर किसके अंदर चेंज मिलेगा हमें? इन दी सिस्टम. या तो सिस्टम में या सराउंडिंग में. सराउंडिंग में तो हमें पता चल जाएगा हाँ हीट चेंजेस हुए हैं. ठीक है. फाइन. सो अब ये भी एक टाइप का एनर्जी ट्रांसफर हो जाता है हीट. तो अब इसमें जो साइन नोटेशन फॉलो करोगे वो क्या हो जाएगा? व्हेन हीट इज सप्लाइड टू द सिस्टम, तो हम क्या बोलेंगे? हीट सप्लाइड टू द सिस्टम, तो साइन क्या Positive. होना चाहिए? हम पॉजिटिव. To system. तो obviously system is gaining the energy, so that means we will use delta Q will become with a positive symbol, and यहाँ पर heat is lost by the system. Then what will be the Negative. notation of this? There is loss of energy. तो loss कैसे represent करते हैं? With a negative symbol. तो ये sign notation work and heat के याद रहेंगे. ये sign notation work and heat के याद Yes, रहेंगे. ma'am. यस मैम. ठीक है. So these are the two types of, you can say, heat transfer. तीन तरीके की heat transfer हम लोगों ने पढ़ लिए. कौन कौन से? एक हो गया internal energy में change. दूसरा कौन सा हो गया? इंटरनल एनर्जी में चेंज की वजह से एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन आ सकता है, जिसको हम लोग जो डिस्प्लेसमेंट क्रिएट करेगा एंड इट विल कॉज वर्क डन, वहां पे ट्रांसफर हो सकती है हीट. और तीसरा क्या हो गया? हम लोग हीटिंग या कूलिंग करेंगे तो हीट चेंज या हीट लॉस या हीट गेन अकर करेगा, उसको भी हम लोगों ने यहाँ पे कर लिया. कैन यू गेट इट? कैन यू गेट इट? Yes, ma'am. यस मैम. तो अब देखो हम लोग थर्मोडायनेमिक लॉज पढ़ते हैं. मैं तुमको ब्रीफली बता देती हूँ थर्मोडायनेमिक लॉज हैं क्या क्या. फाइन. तो अब थर्मोडायनेमिक लॉज, तो हमें बेसिकली 2 लॉज पढ़ने हैं. एक है जीरोथ लॉ, वो बहुत इजी है, उसमें कुछ है ही नहीं. तो जीरोथ लॉ क्या बोलता है कि इफ टू सिस्टम्स आर इन इक्विलिब्रियम, if two systems are in equilibrium,
are in thermal equilibrium मतलब same temperature में है, are in thermal equilibrium with third system, with the third system, they are also in equilibrium with each other, they are also in equilibrium with each other, with each अदर। मतलब सिंपल सा कहानी ये है, बस इसको लैंग्वेज में कॉम्प्लिकेट कर दिया गया कि मैंने जैसे देखा मेरे पास एक बॉडी थी, सपोजिंग एक बॉडी थी ए नाम की और एक बी नाम की, तो आई सॉ दैट द टेम्परेचर ऑफ ए इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ बी, ठीक है। एंड देन दूसरी बार हमने देखा बी बॉडी का और सी बॉडी का टेम्परेचर, तो आई फाउंड टेम्परेचर ऑफ बी इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ सी। सो व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर ऑफ ए एंड सी? Equal. दैट इज योर zeroth law कि दो बॉडीज के टेम्परेचर, तीन बॉडीज के टेम्परेचर मतलब अलग अलग देखा जाए तो अगर सेम आ रहे हैं तो दैट मीन्स दे आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। कैन यू गेट द लैंग्वेज नाउ? Yes, ma'am. बस इतना सा ये लॉ है। फाइन, देन वी मूव टू द फर्स्ट लॉ। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमें करना है। सो फर्स्ट Can you go to the previous slide? बेटा I have already told you